Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 8 SST chapter. We will continue this chapter. The chapter making of the national movement 1817 to 1947. 1817, it means that date when the one national party was organized 1885. Before that time, 1817. And second date 1947, that was the date when India become free. तो हम इसके बीच के पूरे इतिहास को पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से भारत के विकास, भारत के स्वतंत्रता के संदर्भ में बातें हुई. हम लोगों ने देखा कि भारत में महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ. इसके पहले के चैप्टर हमने सोशल रिफॉर्म के बारे में पढ़ा. वी हैव डिस्कस अबाउट दैट सोशल रिफॉर्म व्हिच वाज डन बाय द वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, Raja Ram Mohan Rai, and there are so many names. If you have remember about that, you can easily understand that what is their role and what is their importance in the national movement and the social reform. सब में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में और उनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को और मुखर और मजबूत बनाने में इन नेताओं का बड़ा योगदान था. इन महत्वपूर्ण समाज सुधारकों का बड़ा योगदान था. उसके बाद इन लोगों ने एक पॉलिटिकल वे से डेवलपमेंट हुआ. कांग्रेस की स्थापना 1885 और फिर धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स लिबरल वे से ब्रिटिश एम्पायर से मांगनी शुरू कर दी और फिर इसका विकास एक क्रम से हुआ. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एडवांस ऑफ महात्मा गांधी टॉपिक्स एंड इन दैट टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डेवलपमेंट फेज ऑफ the national movement of India. If you will minutely observe about the national movement, you can categorize in three parts. तीन पार्ट में बांट सकते हैं. फर्स्ट पार्ट 1885 to 1905 and 1985 to 1909, that is second, and 1909 to 1947, that is the third phase of our national movement. Third phase is called the Gandhian era. Why? Because the all movements which was done in India during that time, which was highly influenced by Mahatma Gandhi, or in other words we can say that these are all movements were led by Mahatma Gandhi. I hope you remember my previous class where I discussed with you which topic? I discussed with you that topic that was non-cooperation movement. Very cleverly Mr. Gandhi merged the Khilafat movement with non-cooperation movement. Gandhi wanted that without unity of Hindu and Muslim, we cannot succeed in our main aim. But unfortunately, what happened? The incidents of Chori Chora. Gandhiji taken back their steps. The non-cooperation movement was taken back by Mr. Gandhi. Gandhiji was arrested, and then after, with a gap of 5 to 9 years. After 1922, Gandhi was arrested and he was imprisoned. But on behalf of their ill health, I mean to say that their poor health, he was released from jail. And when he released, he involved himself in creative work. I think here also, no need to explain because we have discussed that what was the creative work done by Mr. Gandhi. He focused the untouchability. He focused the women condition. He focused the what? The rural economy. The charkha. He launched the charkha. He promote the common people to wear on the khadi. I hope you remember 1920, the Indian people boycotted the British goods. And it was directly affected the British economy. That was what? Downfall in a huge amount. बड़ी संख्या में निर्यात घटा, उनकी उत्पादन क्षमता घटी और इससे क्या हुआ? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही खराब होने लगी. तो ये एक व्यवस्था थी. गांधी इस चीज को समझ चुके थे, लेकिन गांधी जी अब एक नए तरीके से अपने लोगों को भारत की एकता और भारत की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ाने के लिए चाह रहे थे. इसलिए जरूरी था कि भारत का हर एक वर्ग आइदर
Hindu or Muslims or scheduled tribe, scheduled caste, upper class, lower class, prosperous people, rich people, poor people, everyone. They have to first feel that I am Indian, I am a citizen of India. So that's why it is our responsibility to involve in movement. We have to do for our nation. And when you will, I think, when the common people will think such type of ideas, then they will do better than their previous condition. And it is in favor of the Gandhian movement. Gandhi always favored the non-violence movement. Gandhi urged everyone that you should never be violent. I hope in my previous class where I have discussed with you that the condition of the Bhagat Singh, 8 April 1929, that was the date when Bhagat Singh threw the bomb in the Central Assembly. Bhagat Singh was arrested. There are the various cases imposed on them. The Sedition Act also. I hope you know about the Sedition Act. Sedition Act, that was the very brutal act. It was imposed on those people, according to Britishers, they were not in favor of their, I meant to say that कि उनके प्रशासन के, उनकी व्यवस्था के, उनके शासन के अनुकूल जो व्यक्ति नहीं होता था, जो एक्सट्रीमिस्ट होता था, उसके ऊपर इस तरह के एक्ट लगा उसको जेल में डाल देते थे. इस तरह की व्यवस्था करके उन्हें जेल डाल दी गई. I hope you should also know about that, the Kakori case, 1925. 9 अगस्त 1925 काकोरी केस. व्हाट हैपेंड इन काकोरी? काकोरी में एक बैंक लूटा गया. चलती हुई ट्रेन को लूट लिया गया. बैंक की जगह नहीं, चलती हुई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन को लूटा गया. HSRA के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दैट एसोसिएशन वाज द एक्सट्रीमिस्ट एसोसिएशन. चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जितने भी आप एक्सट्रीमिस्ट लीडर का नाम सुनते हैं, सभी इसके मेंबर थे. उन्होंने देश को, उन्होंने जब उनके पास इकोनॉमिक कमजोरी, उन्होंने स्टेप उठाया. पर जो चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के बाकी सभी लोग अरेस्ट कर लिए गए, ऊपर केस चलाया गया और बाद में उसमें काफी लोगों को फांसी भी की गई. राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये तमाम सारे नाम हैं. यू हैव टू रीड, यू शुड आस्क फॉर अबाउट देम टू योर सीनियर्स, टू योर एल्डर ब्रदर्स, टू योर एल्डर सिस्टर्स, योर फादर ऑल्सो. क्या हुआ उनके बारे में, कौन थे ये लोग, why they are facing such type of difficulties. And my dear students, you have to remember that they sacrifices their whole thing for our nation. But nowadays we are suffering a lot of problems. There are so many corruptions nowadays in India. Have you think in your mind कि क्या हमारा देश इसीलिए उन लोगों ने आजाद कराया? क्या इतने सारे जो बलिदान दिए गए वो इसके लिए कि आज हम हमारा देश एक सही तरीके से मूव ना करें? So my dear student, it is your duty and it is your responsibility to think, and you have to develop yourself as a ideal citizenship. Ideal citizen, अपने को एक योग्य नागरिक के रूप में कन्वर्ट करना आपकी सबसे बड़ी जरूरी है. My dear student, let us come our point. We are going to discuss about the Dandi March. But before we start the Dandi March, you have to understand before the political conditions. Why Gandhi started Dandi March? The march against the civil disobedience 1913. This was the broad movement which was started by Mr. Gandhi. Actually, the condition was totally different. Congress session 1929 in Lahore. Congress asked for their demands to the British Empire. Gandhi also wrote their requirements with the help of their own मैगजीन्स, अपने पत्र के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने बात को मांगा. बट गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन डिनाइड देम, ही इग्नोर्ड देम. गांधी जी डिसाइडेड दैट नो, इट्स नॉट ए मैनर, इट्स नॉट, आई मीन टू से दैट की स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो गांधी वहां लिखते हैं कि अंग्रेज सरकार एक शैतानी सरकार है. हमने रोटी मांगी थी और हमें पत्थर मिला.
हम इसके खिलाफ अब एक एक्शन लेने जा रहे हैं, इसके लिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट दोषी नहीं ठहराएगी क्योंकि हमने लीगल पेपर्स के माध्यम से अपनी डिमांड को मांगी थी। कंप्लीट स्वराज्य की बात करते हैं। वन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द कंप्लीट स्वराज्य, कंप्लीट स्वराज्य, ये जो वर्ड है दैट इज द सफिशिएंट वर्ड। अब यहां पे कंप्लीट स्वराज्य की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी, और हमें कंप्लीट स्वराज्य चाहिए, ये चीज डिमांड कर रहे थे। गांधी लाहौर सेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया। इरविन के डिनाइड करने के बाद गांधी ने डिसाइड किया कि मैं नमक कानून तोड़ूंगा, साल्ट सत्याग्रह करेंगे हम। एंड साल्ट सत्याग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी क्या कि एक लंबी यात्रा बना के एक नमक कानून को तोड़ा जाए। Here one more thing which is very important, which I want to discuss you, that the salt. Why Gandhi accepted the salt for their movement? Because salt was the necessary needs for everyone. The rate of salt was very high. The extra taxes imposed on salt, so that's why it was not in access of the common people. So Gandhi decided that that is the very important things. On the basis of that, we can give the message for our whole nation. And Gandhi started a salt satyagraha. Salt satyagraha, that is, for the salt satyagraha, Gandhi started Dandi March. That is the your point. Dandi March. The Purna Swaraj would never come on its own. It had to be fought for in 1930. Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. According to this law, the state had to monopoly on the manufacture and the sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it's such an essential item of our food. The Salt March related the general desire of freedom to specify grievances shared by everybody, and thus did not divide the rich and the poor. How strange, Mr. Gandhi and their brain. We should admire them. Gandhi felt that the salt is the necessary needs for everyone, either he prosperous or he poor, either he Brahmins or he SC or ST, कोई भी हो, फूड के लिए सबसे जरूरी चीज है नमक। और गांधी ने इसीलिए नमक को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया, क्योंकि इसके माध्यम से वो समाज के हर एक वर्ग को जोड़ सकते थे। बट हियर इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ब्रिटिशर्स दे नेवर असेस देयर दैट स्ट्रेटजीज। गांधी की इस स्ट्रेटजी को अंग्रेज समझ नहीं सके। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling seawater to produce salt. गांधी साबरमती की डांडी से साबरमती की यात्रा की 240 मील की यात्रा 78 सहयोगियों के साथ गांधी डांडी पहुंचे। डांडी पहुंचने के बाद गांधी ने नमक पानी को गर्म किया, समुद्र के पानी को, और उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। यहां से गांधी के नमक कानून तोड़ने, आई मीन टू से द पीजेंट्स, द ट्राइबल्स एंड वुमेन्स पार्टिसिपेट इन ए लार्ज नंबर ऑफ द बिजनेस फेडरेशन, published pamphlets on the salt issue. The government tried to crush the movement through the brutal action against peaceful satyagrahi. Thousands were sent to jail. The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act 1935 prescribed the provincial autonomy, and the government announced the election to the provincial legislature in 1937. The Congress formed the government in 7 out of 11 provinces. My dear student, what I am telling with you, that why Gandhi accepted the salt, because there is no need to I mean to say that again explain. एक बार फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है। गांधी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि गांधी ने समाज के सभी लोगों को जोड़ना चाहते थे।
अब इस मूवमेंट से धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में लोग यूनाइट होने लगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, पुरुष, महिला, बच्चे सभी बड़ी संख्या में आंदोलन से एक साथ क्या होने लगे, पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। पूरे भारत में जगह जगह शांति मार्च निकाले गए। लेकिन अंग्रेजों ने इस शांति मार्च के अगेंस्ट क्या किया, एक ब्रूटल स्टेप उठाया, एक कठोर स्टेप लिया गया। और ये कठोर स्टेप एक घटना है धरसना की। धरसना में गांधी अरेस्ट कर लिए गए। गांधी अरेस्ट करने के बाद गांधी जी का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। धरसना में गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी साथ थे, सरोजिनी नायडू थी, और यहाँ पे एक ब्रिटिश पत्रकार था बेब मिलर। वो लिखता है कि अंग्रेज अपने को आइडियल कहते हैं, अंग्रेज अपने को जेंटलमैन कहते हैं, लेकिन जो मैंने धरसना में देखा कि निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज की जा रही थी, स्वयंसेवकों का एक समूह आगे बढ़ता था, सत्याग्रहियों का एक समूह आगे बढ़ता था, लाठी की चोट से वो जमीन पे गिरते थे, अगली पंक्ति फिर आगे आ जाती थी, फिर उन्हें मारे जाते थे। किससे मारते थे? लाठी में पीतल के चूल्हे लगे हुए थे, पीतल के कपल, उस पर क्या थे, बॉन्डिंग की गई थी, उसको कवर किया गया था, और उससे चोट करके मारा जाता था। फ्री मैन अमेरिकी पत्रकार था, अमेरिकी मैगजीन्स थी फ्री मैन, उसका ये पत्रकार था जिसने बातें लिखी। और इस तरीके से पूरे कहां पे कहता है कि एक तरीके से ये पूरे विश्व में फैलने लगा, ब्रिटेन की थू थू होने लगी। और अब ब्रिटेन को कहां आना, बैकफुट पे आना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टू बैकफुट and he tried to negotiate with Mr. Gandhi. 5 March 1931, Gandhi-Irwin Pact, and according to that pact, Gandhi agreed to join the second round table conference 1931. He reached England, वो इंग्लैंड पहुंचे, but having seen the condition of round table conference, he became very what? Annoyed and angry both. Their own people asked for the separate state for their own. Muslim League asked for the separate state for the Muslims. Depressed class people, they asked for the depressed state for their own peoples. B.R. Ambedkar asking for that. And similarly, the Council of Prince, they asked for their own rights. Gandhi decided that why I am here. I am here for asking for the freedom of our nation, but here what I am saying? No, I am not agree that such type of any discussion where no one asks for our rights, everyone asks for that India, it क्या हो जाए, भारत कई खंडों में टूट जाए। मैं ऐसे किसी राष्ट्र के के लिए बात नहीं करना चाहता। और गांधी दे रिटर्न बैक, गांधी वापस आते। The brutal action started, the repression movement, brutal repression movement started by the British government. Lord Wellington, he reached India and he took very brutal step. The main leader were arrested and imprisoned, but they cannot control. 1935, that was the date when the Government Act 1935 एक्ट पास, एक कानून पारित किया गया इन सितंबर 1939। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपुल bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed the provincial autonomy. Indian Government of India Act of 1935 prescribed the provincial autonomy. एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात देकर के एक लॉलीपॉप देने का प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ से भारत के लिए जो एक्ट 1935 आया, इसमें अखिल भारतीय एक संघ बनाने की बात की गई थी। तो यहाँ पे कहता है कि द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। द कांग्रेस formed the government in 7 out of 11 provinces. Elections happened in 1937. Total 11 provinces
कांग्रेस केम इन मेजॉरिटी इन द 7 प्रोविंसेस। 7 राज्यों में कांग्रेस मेजॉरिटी में आई, कांग्रेस की मेजॉरिटी बनी और कांग्रेस ने मेजॉरिटी में आने के बाद अपनी सत्ता बनाने का, सरकार बनाने का गठन किया। लेकिन क्या यह सरकार चली? कितने दिनों तक चली? महज 28 महीने, 28 months. Why? What happened? Let us come and point. We will discuss. In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. Mind it, only 2 years of the ruling of the Congress party in their provinces, Second World War broke out. The critical of Hitler, Congress leader were ready to support the British war effort, but in return, they wanted that India be guaranteed the independence after the war. British, I mean to say the Indian leader, that was the opportunity for the Indian leaders. Indian leader felt that if would support the British government have to give us our freedom. But it is thought of the Indian leaders. ये विचार था भारतीय नेताओं का। भारतीय नेता सोचते थे कि यदि हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो हम अंग्रेजों से क्या लेंगे, इसके बदले, इसके एवज में अंग्रेज हमको हमारी स्वतंत्रता हमें दे देंगे, इस शर्त पे हम अंग्रेजों को मदद देंगे। बट क्या हुआ? द कांग्रेस मिनिस्टर्स resigned in protest. Why? Because the British refused to concede the demand. British conceded the demand. मना कर दिया, मानने से इनकी बात को इनकार कर दिया। किस बात को? कहता है कि जो कांग्रेस के नेता सोच रहे थे, कांग्रेस के नेता सोच रहे थे कि हमें, यदि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें हमारी स्वतंत्रता दे देगी। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डिनाइड कर दिया, नहीं माना, और इसके एवज में कांग्रेस की सरकार ने अपने राज्यों में रेजिग्नेशन दे दी, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। अब यहां से एक नए फेज में मूवमेंट आगे बढ़ता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन। My dear student, before start Quit India movement, we have to discuss some important topics, important points, which is very important for us. ये बहुत जरूरी है कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले, हमें ऐसे कुछ बिंदुओं पे ध्यान दें जो उसमें घटे। जैसे कांग्रेस का 11 राज्यों में से 7 राज्यों में सरकार बनाना, जिसके बारे में हमने आपसे बात की। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट इन द 11 प्रोविंसेस कांग्रेस केम इन मेजॉरिटी। हाउ मेनी स्टेट्स? 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में उसको मेजॉरिटी मिली। लेकिन इन चीजों के पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात मैंने की आपसे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, गांधी जी वहां से वापस आए। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक चीज का तीव्र विरोध, तीखा विरोध किया। वो था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात सभी कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि सेपरेट नेशन के रूप में लोग बात कर रहे थे, एक ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में बात कर रहे थे, और गांधी जी ने इसको डिनाइड किया, गांधी जी ने इसको नहीं माना। तो यहां पे उन चीजों को महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में रखा जाना बहुत जरूरी है। आपको समझने में आसानी तब होगी जब आप उन चीजों को भली प्रकार से समझेंगे, देखेंगे। जैसे कि जब सेपरेट ऑटोनॉमस स्टेट की बात कर रहे थे, रिटर्न आए तो गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि यह कैसे संभव है कि हमारे देश में, एक देश में अलग अलग लोग अपने धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग देश की मांग करें। यहां पे गांधी जी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी खेली,
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, कम्युनल अवार्ड का कार्ड खेला। 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड पारित कर दिया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड में ये बात रखी गई कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, माइनॉरिटीज़ को लेजिस्लेचर में कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई उनके लिए। अब माइनॉरिटी की दायरे को बढ़ा दिया गया। माइनॉरिटी में कौन कौन था? पहले सिर्फ मुस्लिम्स थे जिनको माइनॉरिटी के अंदर मान्यता थी, लेकिन अब मुस्लिम के अतिरिक्त और भी लोग जो माइनॉरिटीज में आने लगे। कौन कौन? तो कहता है वो लोग जैसे सिख, जैसे दलित, ये लोगों को भी माइनॉरिटीज में हिस्सा दिया जाने लगा। कह रहा है कि स्पेशली जो सांप्रदायिक, जो कम्युनल डिसीजन लिया गया उसके तहत जो माइनॉरिटीज को लेजिस्लेचर में सीटें रिजर्व कर दी गई, सदस्यों को सेपरेट इलेक्ट्रेट में सम्मिलित कर दिया गया। मुस्लिम और सिख तो पहले से ही माइनॉरिटी माने जाते थे। अब इस नए कानून के तहत जो शेड्यूल ट्राइब थे, डिप्रेस्ड क्लास पीपुल्स थे, इनको भी हिंदुओं से अलग मान करके सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात दी गई। गांधी जी इससे बेहद नाराज हुए। गांधी जी इंडिया पहुंचे और इंडिया पहुंचने के बाद गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, भूख हड़ताल कर दिया गांधी जी ने। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद थे। ही वॉज imprisoned in यरवदा जेल। He highly opposed the Ramsay MacDonald Award, Ramsay MacDonald Act, because according to that act, the Sikh and Muslims, they were already declared as a minority in India. But also in the Ramsay MacDonald, one other group included that minority list. They were Dalits. They were depressed class people. So that's why Gandhi opposed. गांधी जी ने कहा नो, दलित्स दे वर द इम्पॉर्टेंट पोर्सन, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हिंदू रिलीजन। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट अवार्ड, दैट रूल्स। और गांधी जी यरवदा जेल में हंगर स्ट्राइक में बैठ गए और फिर धीरे धीरे गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी। गांधी जी ने अपनी बात को मनवाने के लिए 20 सितंबर 1932 डेट याद रखिएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड कब आया? रैमजे मैकडोनाल्ड की डेट है, जब रैमजे मैकडोनाल्ड पारित हो रहा है वो डेट है 16 अगस्त 1932। गांधी जी हंगर स्ट्राइक बैठ रहे हैं 20 सितंबर 1932। 4 दिन बाद 16 अगस्त 1932 Ramsay MacDonald Award that was passed, and 20 August 1932 Gandhiji started their hunger strike for what? Protest that act. गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा, तेजी से उनका श्वास गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी आदि ने गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता कराया। 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1936 की डेट जब गांधी दास, आई मीन टू से दैट, क्या हुआ? पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए। पूना पैक्ट, इसके अंतर्गत क्या किया गया? पूना पैक्ट में समझौता किया गया कि अब दलित वर्ग जो थे, डिप्रेस्ड क्लास थे, उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर था, उस स्टेट लेजिस्लेचर में जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, उनकी सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, उसमें एससी के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए 18 सीट रिजर्व कर दी गई। और यहां से ये समझौता एक अच्छे एंड पे जाके खत्म हुआ। तो ये घटनाएं चल रही थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही थी, और जिसके बारे में हमने बात की कि कांग्रेस के जो सरकार बनी थी 7 प्रोविंसेस में, और इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट वाज ब्रोक आउट, सो दैट्स व्हाई दे लीडर्स, द कांग्रेस लीडर, दे फेल्ट दैट कि दिस इज टाइम व्हेन वी बार्गेन
with Britishers that if they will give us our freedom, we will support them. But what happened? There is no need to explain that the British government conceded up that he denied. He not accepted their demand, and that's the result that was not in favor of what? In favor of कांग्रेस पार्टी. और यहाँ से एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट. वी विल रीड क्विट इंडिया मूवमेंट इन आवर नेक्स्ट क्लास. आज के लिए इतना ही. गुड बाय एंड टेक केयर.